Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to see your chapter number 2, and the name of your chapter is Plant Kingdom. My dear student, in this chapter, we are going to see different types of plants. Okay, in what way plants help us? Okay, why we say plants are really our best friend. Okay, plants genuinely care for us. Okay, and in this chapter we are also going to see different types different body parts of plants. Okay, so in short you are going to see some leading points, okay, in your chapter, like plant life. Okay, now the second one is where do they grow. Okay, there are different types of plant. It means all these plants grow on different areas. Okay, so we are going to see the different areas where these plants grow. Plants serve us, even plant also serves us. Okay, so we all are going to discuss all those things in our chapter. Now come with me and let's see the chapter. Plants are living organism characterized by growth and reproduction. Yes, plants are living organisms. Okay, they comes under the category of living organism. Okay, they always grow and they reproduce themselves. Okay, some plants are big and small. Some plants are big and some are small. Some plants, my dear students, are bigger in size and some are smaller in size. ठीक है, some are very big in size. कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, tall and strong tree tall and strong plants are called trees. जो बहुत लंबे होते हैं और जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं. एग्जाम्पल आपका बनियान का ट्री है और आपका कोकोनट का ट्री है. बनियान और कोकोनट के ट्रीज क्या होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं. ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, some bushy plants like rose and cotton plants are called shrubs. ठीक है, sorry, small bushy plants. Okay, small bushy plants like rose and cotton plants are called shrubs. अब एक दूसरी कैटेगरी आती है हमारे प्लांट्स की, उसको कहा जाता है shrubs. अब ये shrubs क्या होते हैं? जो shrubs होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे छोटे से bushy plant होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा रोज का प्लांट है, हमारा कॉटन का प्लांट है, इन्हें हम shrubs की कैटेगरी में लाते हैं. फिर बारी आती है plants smaller than shrubs are called herbs. For example, basil, mint and rosemary. Okay, so here my dear student we can see the another category of our plants. Okay, so the plants which are smaller than shrubs in size and shape, they are called as our herbs. Examples हमारे basil plant है, फिर हमारा mint है और rosemary का plant है. ठीक है, now climbers are weak with climbers are plants with weak stems. इसके अलावा आप लोग बहुत से ऐसे प्लांट्स देखते होंगे जो क्लाइंब करते हैं, जैसे कि कुकुम्बर है, वाटरमेलन है. ठीक है, बॉटल गार्ड है. ये सब क्या, ये सब क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आती हैं. क्यों क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आती हैं? क्योंकि इनका जो ये स्टेम होता है ना, इनके जो स्टेम्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है. इनके अंदर इतना ज्यादा पावर नहीं होता है कि वो उनको होल्ड करके रख सके. ठीक है, इसीलिए इनको हम क्लाइंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी माय डियर students the example of this is the example of tree, this is the example of shrub, this is the example of herb, and this is the example of climbers. Okay, so this is the example of tree, this is the example of shrub, this is the example of your herb, and this is the example of our climbers. Now we are going to see the next paragraph. There are variety of plants that we see around us. All of them have some common parts. Each part of the plant have a job to perform. All these parts work together to keep the body of a plant strong and healthy. हमारे आसपास आप देखते हो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. ठीक है, उनमें से बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके कॉमन बॉडी पार्ट होते हैं. ठीक है, सारे बॉडी पार्ट का प्लांट का अपना अपना जॉब होता है. जैसे हमारे बॉडी पार्ट में हमारे हेड का एक काम है, वैसे ही हमारे नोज का एक काम है, हमारे ईयर्स का एक काम है, हमारे फिंगर्स का एक काम है, हमारे एल्बो का, हमारे चेस्ट का, नेक का, लेग का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सब के अपने अलग अलग डिफरेंट काम होते हैं. उसी तरीके से जो प्लांट्स की बॉडी होती है उनके भी अलग अलग काम होते हैं, बट ये सारे क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे प्लांट एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग प्लांट कहलाता है. ठीक है, नाउ plants grow in different places. You all know, my dear student,
at every places of our planet Earth, we can see different types of plants. Maybe it is desert area, maybe it is the coldest region of our planet Earth, maybe it is the hottest area, maybe it is rainy area. इन सारी जगहों पे हम सारे different types का plants देखते हैं. Different types of plants grow at different places. फिर एंड पाइन ट्रीज ग्रो ऑन माउंटेन्स वेयर इट इज कोल्ड. जो फिर और पाइन के ट्रीज होती हैं ये माउंटेन्स में ग्रो करती हैं जहां पे ठंडी होती है. मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन हॉट प्लेसेस. आम और नीम जो इनके पेड़ होते हैं ये गर्म जगहों पे पाए जाते हैं, हॉट एरियाज में पाए जाते हैं. द कोकोनट ट्री ग्रोज इन हॉट एरिया नियर द सी. जो कोकोनट का ट्री होता है, ठीक है, कोकोनट का ट्री हॉट एरिया में भी ग्रो करता है, लेकिन वो हॉट एरिया आपका वाटर के पास का होना चाहिए, ठीक है. तो वहां पे बहुत लंबे लंबे कोकोनट के प्लांट्स आप देखेंगे. कैक्टस ग्रो इन हॉट डेजर्ट वेयर वाटर इज वेरी लिटिल. कैक्टस का प्लांट डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है जहां पे पानी बहुत कम होता है. वाटर लिली एंड लोटस ग्रो इन वाटर. वाटर लिली और लोटस ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे पानी में ही उगते हैं, ठीक है. So here you can see, my dear student, this is the example of mango tree, coconut tree, cactus, water lily. Okay. Now keep in mind here what we have to keep in our mind. Regular supply of air, water and sunlight make a seed grow into a healthy plant. ठीक है. अगर वाटर का, एयर का और सनलाइट का प्रॉपर रेगुलर सप्लाई हो रहा है तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो एक सीड से एक हेल्दी प्लांट में वो ग्रो कर जाएंगे. मतलब एक बेबी प्लांट से वो एक एडल्ट प्लांट में ग्रो कर जाएंगे. माउंटेन प्लांट्स आर इन कोन शेप. जो माउंटेन एरियाज में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो हमेशा कोन के शेप में होते हैं, ठीक है. Now parts of a plant. Now we are going to see the next topic of our chapter, which is telling us about different parts of our plants. A plant has roots, stem, leaves, branches, flowers and maybe fruits with seed inside them. So how many types of plants have a body part? In the form of roots, stems, leaves, branches, flowers and seeds. Okay. The part of plant which is above the soil is called shoot. प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं शूट, ठीक है. द शूट ऑफ अ प्लांट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विद सीड्स. जो शूट होता है, शूट में ही आपके स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, सीड्स होते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, क्योंकि ये जमीन के ऊपर होते हैं, सॉइल के ऊपर होते हैं ये. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच रिमेन्स अंडर द सॉइल इज कॉल्ड द रूट. और वो हिस्सा प्लांट का जो जमीन के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं. द रूट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. और जो रूट है, रूट ही सॉइल में प्लांट को पकड़ के रखता है. इसीलिए कहा जाता है ना, अगर रूट किसी प्लांट का स्ट्रांग होगा वो प्लांट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है. It takes water and salt from the soil and send it to the other parts of the plant through the stem. अब soil जो है जो root है हमारा, वो किस तरीके से plant को पकड़ के रखता है, क्योंकि जो soil में water content और जो salt content होता है, roots उसको absorb कर लेता है और absorb करने के बाद वो उनको transport कर देता है shoot वाले area में, ठीक है. Keep in mind, the stem helps a plant stand straight and upright. Stem ही वो पार्ट होता है बॉडी का, प्लांट के बॉडी का, जो एक प्लांट को खड़े रहने में और सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है. Stem also transports water and food to different parts of the plant. Stem क्या करता है? Stem पानी और खाना different parts में प्लांट्स के पहुंचाता है, ठीक है. Now we are going to see leaves of plant, ठीक है. Plants have leaves. These are of different shapes and sizes. Some are round, some are long and some are triangular. Plants हैं, उनके पास पत्तियां होती हैं, leaves होती हैं. तो डिफरेंट प्लांट अगर है तो उनके डिफरेंट टाइप्स के लीव्स भी होंगे, उनका शेप अलग होगा, उनका साइज अलग होगा. जैसे कुछ पत्तियां आपकी राउंड शेप में होंगी, ठीक है, कुछ पत्तियां आपकी बहुत बड़ी होंगी और कुछ पत्तियां आपके ट्रायंगल के शेप में होंगी, ठीक है. Some have straight margins and some have अनइवन मार्जिन. किसी में जो मार्जिन होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, तो किसी में अगर मार्जिन होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है. सम मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लेकिन
पत्तियों के कलर क्या होते हैं? ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। लेकिन ग्रीन के अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों का कलर आपका येलो कलर होता है, रेड कलर का होता है या फिर पर्पल कलर का होता है। The leaves prepare the food for the plant and also known as the food factory of the plant. अब खाना कौन बनाता है प्लांट्स के लिए? तो लीव्स बनाती हैं, ठीक है। लीव्स में ही आपका खाना बनता है प्लांट्स का। जब रूट सॉइल से वाटर कंटेंट और सॉल्ट को शूट एरिया में भेजता है, तो शूट एरिया में जो आपका लीफ होता है, लीफ में ही प्लांट्स के लिए खाना पकता है, ठीक है। इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। Now we are going to see in detail what is the meaning of food factory. Let's see. Green leaves of the plant use sunlight and water to prepare food. Starch of the plant. जो पत्तियां होती हैं, जो green leaves होते हैं प्लांट के, ये क्या करते हैं? ये सनलाइट और वाटर का यूज करके प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, और इसी खाना बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन यू हैव टू सिंपली टेल देम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ food by leaves. By the leaves of the plant are called as photosynthesis. ठीक है। So leaves are called the food factory of a plant. तो इसीलिए leaves को कहा जाता है food factory plants का, ठीक है। Keep in mind, leaves are very important part of our life. We not only eat the leaves of many plants but also use them as medicines. आप जानते हो my dear students, जो leaves होते हैं ना, वो प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लीव्स हम लोग खाते भी हैं। कौन कौन से लीव्स हम लोग खाते हैं? साग आप लोग सब लोग खाते हो, स्पिनच खाते हो, ठीक है। वो क्या है? एक तरीके का लीफ ही तो है। तो बहुत से ऐसे लीव्स होते हैं प्लांट्स के जो हम खाते हैं, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लीव्स होते हैं जिनको हम लोग मेडिकल पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। Plants serve us. Now we are going to see in detail, my dear student, in what way plants are beneficial for us. Plants play a vital role in our ecosystem, providing oxygen, food, shelter, and habitat for countless species. Some benefits of plants are given below. ठीक है, जो प्लांट है वो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने जीने के लिए। वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग पर्पस। ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ से? ट्रीज से मिलता है, ठीक है। यही जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और यही जो उनके प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन है वो हम ब्रीद करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, प्लांट्स हमें खाना भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट शेल्टर देते हैं। प्लांट किसको शेल्टर देते हैं? एनिमल्स को देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज भी रहती हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ देखते हैं डिटेल में कि प्लांट से हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट विच वी गेट फ्रॉम आवर प्लांट इज plant give us food, medicines, wood, paper, fibers, beverages and perfumes. प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? प्लांट्स हमें खाना देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हम परफ्यूम्स भी प्लांट से बनाते हैं, हमें लकड़ियां मिलती हैं, और लकड़ियों से क्या बनता है? पेपर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें हमारे प्लांट से मिलती हैं। देन बारी आती है प्लांट्स प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, ठीक है। प्लांट्स क्या करता है? सॉइल को इरोज होने से बचाता है, ठीक है। किस तरीके से? कि अगर सॉइल इरोजन ज्यादा रहेगा तो जानते हो क्या होगा? लैंडस्लाइड आता है वहां पे, ठीक है। फिर बारी आती है प्लांट्स क्लीन द एयर फ्रॉम हार्मफुल गैसेस दैट पोल्यूट द एयर, ठीक है। प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। Our surrounding looks beautiful with plants and flowers. अगर आपके नियर बाय एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा आपके एरिया का सीन, है ना। We eat almost every part of a plant. We eat the seeds, fruits, roots, leaves, and flowers of different plants. We human beings, my dear students, eat all the parts of the plant, okay, in the form of stems. Yes, we eat stems, okay. We also eat roots, we also eat fruits, we also eat flowers, we also eat seeds, okay. We also eat लीव्स। तो इस तरीके से आपने देखा हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं। इवन हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स भी प्लांट्स के हर पार्ट को खाते हैं। वुड फ्रॉम बैम्बू, वुड फ्रॉम बैम्बू ट्री इज यूज्ड फॉर मेक वुड फ्रॉम द बैम्बू ट्री इज यूज्ड टू मेक पेपर, ठीक है। बैम्बू यानी बांस, ठीक है। बैम्बू का जो ट्री होता है यहाँ से हम लोग पेपर बनाने के लिए लकड़ियां लेते हैं। टी, कॉफी एंड कोको आर बेवरेजेस दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। हमें चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमें टी, हमारी कॉफी और हमारे जितने भी कोको है जिससे चॉकलेट बनता है, ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही तो मिलता है ये सब हमें।
Plants give us spices like पेपर, कार्डमम, क्लोव एक्सेट्रा। प्लांट्स हमें बहुत सारे मसाले भी देते हैं, ठीक है। आपके किचन में आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं तो मसाले का तड़का उसमें लगाती हैं, है ना। तो वो सब हमें कहाँ से मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स? वो सब हमें प्लांट से मिलता है। जैसे पेपर का प्लांट है, कार्डमम का प्लांट है, क्लोव का प्लांट है, ठीक है। फिर आप बारी आती है, द रबर ट्री इज यूज्ड इन मेकिंग रबर विच इज वेरी यूजफुल फॉर अस। एक रबर प्लांट है हमारा जिससे हम रबर लेते हैं और रबर हमारे डेली यूज में हम यूज करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, इन मेनी वेज प्लांट्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। सो दिस इज द आंसर व्हाई फ्रेंड्स आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्रेंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द summary of this chapter. Plants are living organisms characterized by growth and reproduction. Yes, plants are living organisms. That's why they can reproduce and that's why they can grow. Different types of plants grow at different places. Okay, if we are talking about many different species of plants, it means this species of plants grow at different places of planet Earth. A plant has root, stem, leaves, branches, flowers and maybe fruits with seeds inside them. ठीक है, प्लांट्स के पास बहुत सारे उनके बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे उनके रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा हैं, ठीक है। प्लांट्स प्ले एन वाइटल रोल इन आवर इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीशीज। प्लांट्स हमारे इकोसिस्टम के लिए भी सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, ठीक है। नाउ फैक्ट कॉर्नर, एप्पल्स ग्रो इन माउंटेन्स ओनली। जो हमारे एप्पल होते हैं, रेड रेड एप्पल होते हैं, खाने में कितना टेस्टी लगता है, मीठा स्वीट सा, ये सिर्फ और सिर्फ माउंटेन एरिया में मिलते हैं एप्पल ट्री पे, ठीक है। यस, एप्पल हमारे ठंडी जगहों पे माउंटेन्स में ग्रो होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स डू आवर एक्सरसाइज। So my dear student, first of all we have to take the correct option. Okay, so before telling you all this, I'm just going to explain you the concept behind this OMR sheet. Okay, in your chapter number 1 I already explained the meaning of OMR sheet. OMR sheet एक पिंक कलर की शीट होती है जिसमें आपको सही ऑप्शंस को आपको मार्क करना होता है। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और सही ऑप्शन को मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, उस सर्कल को पूरा का पूरा कलर करना है। अगर आप उस पर टिक करते हो, अगर आप उस पर क्रॉस करते हो, या पूरा ब्लैंक छोड़ देते हो, या फिर हाफ कलर करते हो सर्कल में, तो ये चारों वे क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट वे क्या है हमारा आंसर देने का, सर्कल को प्रॉपरली कलर कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड OMR शीट। नाउ कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज नंबर 1। हियर व्हाट वी हैव टू डू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सही है उस पे हमें क्या करना है, उस पे हमें टिक करना है। तो चलो आ जाओ, टिक करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो बहुत ही टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ट्रीज। तो इसीलिए आप ट्रीज पे मार्क करेंगे। वाटर लिलीज एंड लोटस ग्रो इन। वाटर लिली और लोटस कहाँ ग्रो करता है, लैंड, एयर या वाटर, वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम। प्लांट सॉइल को क्या होने से बचाते हैं, एयर इरोजन, रेन, इरोज होने से बचाते हैं, ठीक है। नाउ बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। आ जाओ देख लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करना है हमें। पहला क्या है, प्लांट्स आर लिविंग, प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखो, डैश आर प्लांट्स वीक स्टेम्स, ठीक है। कौन से प्लांट्स के वीक स्टेम्स होते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। सो इसका आंसर है क्लाइंबर्स, ठीक है। जो क्लाइंबर्स होती हैं उनके स्टेम्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। ओके, अब देखो सी में क्या है, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट डैश एंड डैश। लीव्स क्या होते हैं, लीव्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। सो हियर यू आर गोइंग टू राइट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। अब देखो, लीव्स आर कॉल्ड द, लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट। नेम एनी 2 हर्ब्स। आपको किसी 2 हर्ब का नाम बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर हर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो देख लो यहाँ पे कौन कौन से हर्ब्स हैं आपके। जो श्रब से भी छोटे होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। तो बासिल, मिंट और रोजमेरी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको किसी 2 का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बासिल एंड मिंट।
हसल एंड मिंट। नाउ 2 में क्या पूछ रहा है, नेम एनी 2 माउंटेन ट्रीज। ठीक है, आपको कोई 2 माउंटेन ट्रीज का एग्जांपल देना है। तो देखिए माउंटेन ट्रीज का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ये रहा, ये देखो फिर एंड पाइन। ठीक है, फिर और पाइन आपके क्या है, माउंटेन ट्रीज हैं। चलिए आप यहाँ पे लिखिए, फिर और पाइन। ठीक है, नेम एनी 2 वाटर प्लांट। कौन कौन से 2 वाटर प्लांट है, वाटर लिली एंड लोटस। वाटर लिली एंड लोटस। Which plant, okay, which helps a plant to stand straight and upright? कौन हेल्प करता है प्लांट्स को स्टैंड खड़े रहने में, स्टेम्स करते हैं। ठीक है, सो हियर योर आंसर विल बी स्टेम्स। ठीक है, फिर आता है वेयर डू एप्पल्स ग्रो। एप्पल्स कहाँ ग्रो करते हैं, माउंटेन्स में। ठीक है, एप्पल्स ग्रो ओनली इन माउंटेन एरियाज, सो आपका आंसर हो जाएगा माउंटेन एरियाज। ठीक है, ओके चलिए नाउ डी, इसमें देखते क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ए है व्हाट आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं हमारे जो हमारे ट्रीज से छोटे होते हैं, है ना, यही है ना श्रब्स का। देखो स्मॉल बुशी प्लांट्स लाइक रोज कॉटन आर कॉल्ड श्रब्स। तो इसका आंसर क्या है आपका, देखो स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स आर रोज एंड कॉटन प्लांट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको रूट और शूट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो रूट का मतलब क्या है, देखो द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच रिमेन्स अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है उसका ये आंसर है। और शूट क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट। ठीक है, तो रूट और शूट का ये आंसर है। अब आगे देखते हैं, देखो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीव्स। लीव्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पे आपका लिखा है, देखो द लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, इसीलिए द लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट एंड नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। दैट्स व्हाई लीव्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब सम यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो हमारे लिए प्लांट से क्या क्या यूजेस है अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 2-3 अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे पहला हमारा प्लांट्स हमारे लिए क्यों यूज है, आप देखो नंबर 1 आप ये लिख सकते हो, प्लांट्स गिव अस फूड, मेडिसिन्स, वुड, पेपर, फाइबर्स, बेवरेजेस एंड परफ्यूम्स। नंबर 1। नंबर 2, plants protect the soil from erosion. Number 3, plants clean the air from harmful gases that pollute the air. Okay, and now the fourth one which you can write here is our surrounding look beautiful with plants and flowers. ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर देंगे। ठीक है, now come with me and let's see the activity time. यहाँ पे क्या करना है, A, collect pictures of different kinds of plants and make a colorful album. ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंट प्लांट्स के पिक्चर्स को आपको कलेक्ट करना है और एक प्लांट पे बेस्ड आपको एक एल्बम बनाना है। ठीक है, फिर पेस्ट और ड्रॉ द डिफरेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ऑल्सो लेबल देम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे या तो आप पिक्चर पेस्ट कर दीजिए या तो आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए उन सारी चीजों का जो हमें प्लांट्स से मिलता है। जैसे हमें फ्लावर मिलता है तो आप फ्लावर का पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट फ्लावर। हमें सीड्स मिलते हैं, सीड्स लगाइए। मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे बहुत सारी मेडिसिन बनाने में हेल्प करती हैं, आप यहाँ पे उनका पिक्चर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, या तो आप उनके पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे या फिर उनके पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे। ओके Okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 2, which is based on plant life. Okay, now my dear students, you have to go thoroughly through this chapter and complete all the remaining exercise with yourself. Okay, because I already discussed answers with you. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with your chapter number 3. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.